Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, I am delighted that you have tuned in to listen to this program. मैं बहुत आनंदित हूं कि आप इस कार्यक्रम को सुनने के लिए उपस्थित हैं। We are always glad to hear from you when you write us letters. हमें हमेशा आपसे जानकर बहुत ही हर्ष होता है जब आप हमें पत्र लिखते हैं। We read them with great excitement. हम बहुत ही उत्साह के साथ इन्हें पढ़ते हैं And we pray that God will bless you through these series of messages. और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर इस संदेश श्रृंखला के द्वारा आपको आशीष दे। And I want to begin today by telling you about an incident that happened not so long ago. और मैं आपको एक घटना के बारे में बताते हुए प्रारंभ करना चाहता हूं जो कुछ ही समय पहले घटी। On March 31st, 1997, 31 मार्च 1997 को 39 members of the cult called Heaven's Gate स्वर्ग का द्वार नामक गलत शिक्षा देने वाले एक समूह के 39 सदस्य were found dead near San Diego in California in the United States. अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन डियागो शहर के नजदीक मृत पाए गए। They had committed a systematic and well-organized suicide. उन्होंने बहुत ही सुनियोजित और संगठित तरीके से आत्महत्या की थी। The cult leader convinced the other members to take their own lives. उनके मुखी ने बाकी सदस्यों को अपनी अपनी जानें लेने के लिए प्रेरित किया। He promised them that when they die, उसने उनसे वादा किया कि जब वो मरेंगे they would meet a spaceship that would take them straight to heaven. तो उन्हें एक अंतरिक्ष यान मिलेगा जो उन्हें सीधा स्वर्ग ले जाएगा। I hope you understand what I'm going to tell you. मैं आशा करता हूं कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आप उसे समझेंगे। A desperately hungry person एक भूख से निढाल व्यक्ति ravages his way through a garbage dump, कूड़े करकट में टटोलता है, trying to find something that will satisfy him. कुछ ढूंढने के प्रयत्न में जो उसकी भूख को शांत करे। Confused people by the millions are turning to all kinds of wrong teaching. लाखों हैरान परेशान लोग हर प्रकार की गलत शिक्षा की ओर फिर रहे हैं। They're looking for answers to satisfy their spiritual hunger. वो अपनी आत्मिक भूख को शांत करने के लिए उत्तर की तलाश में है। The scripture is clear about the issue of life and death, heaven and hell. वचन मृत्यु और जीवन और स्वर्ग और नरक के विषय पर बहुत स्पष्ट है, But in our anxiety to accommodate, परंतु हमारी उपयुक्त बनने की चिंता में, in our anxiety to compromise, हमारी समझौते करने की परेशानी में, in our anxiety not to offend anybody, हमारी इस चिंता में कि कहीं किसी को बुरा न लगे, we have compromised these biblical doctrines, इन सब बातों के लिए हमने बाइबल की शिक्षाओं के साथ समझौता किया है which is as clear as the sunshine. जो कि सूर्य की रोशनी के समान स्पष्ट है। In the life of Elijah, the man of God, परमेश्वर के जन एलिया के जीवन में we will see him going straight to heaven from earth. हम उसे धरती से सीधे स्वर्ग जाते देखते हैं। Why did he do that? उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? Because he was a man who walked with God. क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। He was a man who obeyed God. वो ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर का आज्ञा पालन किया। He was a man who trusted God. वो ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। He was a man who feared God. वो ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से डरता था। Despite of his temporary defeat, अपनी अस्थायी पराजय के बावजूद, despite of his temporary depression, अपनी अस्थायी उदासी के बावजूद, despite of his temporary discouragement, अपनी अस्थायी निराशा के बावजूद, Elijah, like all those who put their trust in the Lord Jesus Christ, एलिया भी उन सब के समान जो यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखते हैं, was taken to eternal life in heaven. अनंत जीवन के लिए स्वर्ग पर उठा लिया गया। God wanted to demonstrate this reality of eternal life in a very clear and visible way by not allowing Elijah to die. परमेश्वर एलिया को मरने न देकर अनंत जीवन की इस वास्तविकता को बहुत ही स्पष्ट रीति से दिखाना चाहता था, Or allowing his body to rot in the ground. या उसके शरीर को धरती के अंदर सड़ने न देकर, But by taking him to heaven in a whirlwind. परंतु एक बवंडर के द्वारा उसे स्वर्ग में ले जाने के द्वारा। Most people think that when they die, they will go to heaven. अधिकांश लोग सोचते हैं कि जब वो मरेंगे तो वो स्वर्ग जाएंगे। This is a lie from the pit of hell, and Satan delights in it. ये नरक की गहराई का झूठ है और शैतान इससे प्रसन्न होता है। Why does Satan delight in it? शैतान को इसमें प्रसन्नता क्यों होती है? It deceives people and keeps them from coming to Jesus Christ. ये झूठ लोगों को छलता है और उन्हें यीशु मसीह के पास आने से रोके रखता है, Who is the only way to heaven? जो कि स्वर्ग का एकमात्र द्वार है। Satan blinds them to the truth. शैतान उन्हें सत्य के प्रति अंधा किए रहता है, Like this group of Heaven's Gate members. उन स्वर्ग का द्वार समूह के सदस्यों के समान। So many of the unbelievers are
deceived in thinking that they can go to heaven without Jesus. बहुत सारे अविश्वासी इस सोच के साथ धोखे में हैं कि वो यीशु के बिना ही स्वर्ग जा सकते हैं। It is absolutely impossible for anyone to get to heaven without faith and surrender of one's life to the Lordship of Jesus Christ. बिना यीशु मसीह की प्रभुता के सामने अपना जीवन समर्पण किए और बिना विश्वास किए किसी के लिए भी स्वर्ग जाना बिल्कुल असंभव है। Regardless of your church affiliation, चाहे आप किसी भी कलीसिया के सदस्य हों, regardless of your family heritage, चाहे आपकी पारिवारिक परंपरा कैसी भी हो, regardless of your head knowledge, चाहे आपके पास कितना भी दिमागी ज्ञान हो, regardless of your moral and ethical conduct, चाहे आपका नैतिक आचरण कैसा भी हो, you can go to heaven only if you personally know the Lord Jesus Christ. आप तभी स्वर्ग जा सकते हैं यदि आप प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। That's it. और बस इतना ही है। I am reminded of the vision that John Wesley once had. मुझे उस सपने की याद आती है जो जॉन वेस्ली ने एक बार देखा। In that vision, he went to hell, उस सपने में वो नरक गया and he asked the gatekeeper there, और उसने वहां के द्वारपाल से पूछा, "Do you have Catholics here?" क्या आपके पास यहाँ कैथोलिक हैं? The answer was yes. उत्तर था हाँ, Many. बहुत सारे। "Do you have Episcopalians here?" क्या यहाँ पर धर्माध्यक्ष भी हैं? And the answer was yes. और उत्तर था हाँ, Many. बहुत सारे। "Do you have Presbyterians here?" क्या यहाँ पर प्रेस्बिटेरियंस भी हैं? The answer was yes. उत्तर था हाँ, Many. बहुत सारे। "Do you have Baptists here?" क्या यहाँ आपके पास बैप्टिस्ट भी हैं? And the answer was yes. और उत्तर था हाँ, Many. बहुत सारे। Finally, and very reluctantly, he asked the all-important question to John Wesley himself. और आखिर में उसने बहुत ही हिचकिचाते हुए जॉन वेस्ली, जो कि वो खुद था, अपने आप से ये प्रश्न पूछा, "Do you have Methodists here?" क्या यहाँ पर मेथोडिस्ट भी हैं? The answer was the same. Yes, many. और उत्तर वही था, हाँ, बहुत सारे। Then he went to heaven, फिर वो स्वर्ग गया and there he asked the angel, और वहां उसने दूत से पूछा, "Do you have Catholics here?" क्या यहाँ पर कैथोलिक हैं? The answer was no, उत्तर था नहीं, not one. एक भी नहीं। "Do you have Episcopalians here?" क्या यहाँ पर धर्माध्यक्ष हैं? The answer was no, उत्तर था नहीं, not one. एक भी नहीं। "Do you have Presbyterians here?" क्या यहाँ आपके पास प्रेस्बिटेरियंस हैं? The answer was no. उत्तर था नहीं। "Do you have Baptists here?" क्या यहाँ पर बैप्टिस्ट हैं? And the answer was no. उत्तर था नहीं। Again, extremely reluctant, Wesley asked, फिर बहुत ही हिचकिचाहट के साथ फिर से वेस्ली ने पूछा, "Do you have Methodists here?" क्या यहाँ पर मेथोडिस्ट हैं? And the answer was the same. और उत्तर वही था, No, not one. नहीं, एक भी नहीं। Finally, in exasperation, he asked, आखिर उत्तेजना के साथ उसने पूछा, "Who do you have here in heaven?" फिर यहाँ स्वर्ग में कौन है? And the angel said, और स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, "All of those who have washed their robes and come under the cleansing power of the blood of the Lamb." वो सभी जिन्होंने मेमने के लहू की शुद्ध करने वाली शक्ति में अपने चोगे को धोया है और उसके अधीन हुए हैं। When those who put their trust in the Lord Jesus Christ die, जब वो जो प्रभु यीशु मसीह पर अपना भरोसा रखते हैं वो मरते हैं, there is no waiting room. तो उनके लिए कोई प्रतीक्षा कक्ष नहीं है। There is no clawing their way up there. कोई उनको ऊपर जाने के लिए अपना रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है। The Bible says in 2 Corinthians 5, 6, and 8, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 6 और 8 पद में बाइबल कहती है, absence from the body at home with Christ. शरीर से छुटकारा पाना मसीह के साथ घर में होना है। It is instantaneous. ये निश्चित है, It is immediate. ये तुरंत होता है। It is checking out here and checking in there. ये ऐसे है यहां से निकलना और वहां अंदर जाना। There is once to die. एक बार मरना ठहराया गया है। The Lord Jesus Christ coexisted with the Father before the foundation of the world. प्रभु यीशु मसीह संसार की नींव रखे जाने से पहले पिता के साथ था। He was one in the Godhead when the world was created. वो परमेश्वर की त्रिएकता में से एक था जब संसार की रचना की गई। The world was created by him and through him. संसार उसी के द्वारा और उसी के साथ रचा गया। Before he was in a human body, उसके मानव देह में आने से पहले the God-man Jesus Christ knew everything. परमेश्वर मनुष्य यीशु मसीह सब जानता था। And he said in Luke 16 और लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय में उसने कहा that when Lazarus died, he went straight to paradise. कि जब लाजर मरा तो वो सीधा स्वर्ग गया, But when the rich man died, he went straight to Hades. परंतु जब धनी व्यक्ति मरा तो वो सीधा नरक गया।
There are only two locations that you can choose to go to. केवल 2 ही स्थान हैं जहां जाने का आप चुनाव कर सकते हैं। There is no third one. कोई तीसरी जगह नहीं है। It is either heaven or hell. या तो ये स्वर्ग है या नरक है। The choice is yours. चुनाव आपका है। Which choice have you made? आपने क्या चुनाव किया है? Are you sure you will go to heaven? क्या आपको निश्चय है कि आप स्वर्ग जाएंगे? People often say to me, लोग अक्सर मुझसे कहते हैं, isn't it arrogance to say that you're sure you're going to heaven? क्या ये कहना अभिमान नहीं है कि आपको निश्चय है कि आप स्वर्ग जाएंगे? I said to one of them, मैंने उनमें से एक से कहा, friend, let me ask you something. मित्र, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। If you invite me to your home for dinner tonight, यदि आज रात आप मुझे अपने घर खाने पे बुलाएं, would it be arrogant of me to take you at your word? क्या तुम्हारे शब्दों के सहारे तुम पर यकीन करना मेरा अभिमान होगा? Would it be arrogant of me to trust your word? क्या तुम्हारे शब्दों पर भरोसा करना मेरा अभिमान होगा? Would it be arrogance for me to believe when I came to your door tonight and knocked that you would open the door and invite me in? क्या ये विश्वास करना मेरा अभिमान होगा कि जब आज रात आकर मैं आपका दरवाजा खटखटाऊं तो आप दरवाजा खोलकर मुझे अंदर आमंत्रित करेंगे? Would that be arrogance? क्या ये अभिमान होगा? No. नहीं। No one is going to heaven because of how good they are. कोई भी अपने अच्छे होने के कारण स्वर्ग नहीं जाएगा। You go to heaven because Jesus said so. आप स्वर्ग जाते हैं क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा। And you believed in his word. और आपने उसके शब्दों पर विश्वास किया। And if I have no reason to doubt your invitation to me, और यदि आपके द्वारा मुझे दिए गए निमंत्रण पर मुझे कोई संदेह नहीं है, and you're a human being which you can go back in your word, और आप तो इंसान हैं जो अपने शब्दों से फिर सकते हैं, how much less would I doubt God who never goes back in his word? तो मैं परमेश्वर पर कम से कम कितना संदेह करूं जो कभी अपने शब्दों से नहीं फिरता। Jesus said in John 6:37, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 37 पद में यीशु ने कहा, those who come to me in no way will I reject them. वो जो मेरे पास आते हैं मैं उन्हें किसी रीति अस्वीकार न करूंगा। Jesus said in John 11:25 and 26, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 25 और 26 पद में यीशु ने कहा, those who believe in me will be with me in heaven. वो जो मुझ पर विश्वास करते हैं मेरे साथ स्वर्ग में रहेंगे। Therefore, it is not arrogance to believe God's word. इसलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना कोई अभिमान नहीं है। It is not arrogance to place confidence in the promises of God and the word of God. परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञाओं पर अपना विश्वास टिकाना अभिमान नहीं है। My listening friends, I want to tell you something very important today. मेरे श्रोता मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। People ask this question out of common misconception. लोग इस आम गलत धारणा की वजह से ये प्रश्न पूछते हैं। People who ask such questions think that we are to go to heaven because of our good work. वो लोग जो ऐसे प्रश्न पूछते हैं सोचते हैं कि हम अपने अच्छे कामों की वजह से स्वर्ग जाएंगे। Therefore, when they hear someone who is confident about going to heaven, इसलिए जब वो किसी ऐसे जन की बातें सुनते हैं जिसे निश्चय है कि वो स्वर्ग जाएगा, they immediately think that he or she is saying that they are good enough to go to heaven. तो वो तुरंत ये सोचने लगते हैं कि ये कह रही या कह रहा है कि इनमें इतनी अच्छाई है कि ये स्वर्ग जाएंगे। They see it as arrogance. वो इसे अभिमान के रूप में देखते हैं। Of course, if that was the case, I would agree it is arrogance. निश्चय यदि ऐसा होता तो मैं मान लेता कि ये अभिमान है। I am not nearly good enough to even get close to heaven. मुझ में तो स्वर्ग के पास जाने तक के लिए पर्याप्त अच्छाई नहीं है। I have no goodness to even get me on the road to heaven. मुझ में तो स्वर्ग को जाने वाला मार्ग तक लेने की अच्छाई नहीं है। But the Bible from cover to cover tells us that we go to heaven based on trusting in the shed blood of Jesus Christ who has invited us in. परंतु बाइबल पन्ने से पन्ने तक हमें बताती है कि हम उस यीशु मसीह के बहाए गए लहू में विश्वास करने के आधार पर स्वर्ग जाते हैं जिसने हमें वहां आमंत्रित किया है। The Bible tells us that it is only through faith in Jesus Christ that anyone will make it to heaven. बाइबल हमें बताती है कि केवल यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा ही कोई स्वर्ग जा पाएगा। Elijah was a man who walked with God. एलिया ऐसा जन था जो परमेश्वर के साथ साथ चला। And now his time has come to be in the presence of God. और अब उसका परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का समय आ गया है। When that time came, जब वो समय आया, God decided that Elijah, like Enoch, would go straight to heaven. परमेश्वर ने फैसला किया हनोक के समान एलिया को भी सीधा स्वर्ग ले जाने का। He would not see an earthly grave, but would be transformed into his heavenly body on the way up
by a whirlwind. वो सांसारिक कब्र को नहीं देखेगा, परंतु बवंडर में ऊपर जाते हुए उसकी देह स्वर्गीय देह में बदल जाएगी। The Bible said that this flesh cannot inherit the kingdom of God. बाइबल कहती है कि ये शरीर परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। The Bible said that this is a corruptible tent that we live in. बाइबल कहती है कि ये शरीर एक नाश्वर तंबू है जिसमें हम रहते हैं, And therefore it goes to the ground and rots just like the seed goes into the ground and is not seen anymore. और इसलिए ये धरती में जाकर सड़ जाता है, वैसे ही जैसे बीज धरती के अंदर जाता है और फिर दिखाई नहीं देता। But when believers get to heaven, परंतु जब विश्वासी स्वर्ग जाते हैं, Jesus has a body that is prepared for them. यीशु के पास एक शरीर है जो उनके लिए तैयार किया गया है। It is a heavenly body like the Lord Jesus' after the resurrection. ये स्वर्गीय देह है जैसी पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु की थी। It is a body that is free from pain, ये वो देह है जो पीड़ा से स्वतंत्र है, free from battles, युद्धों से स्वतंत्र, free from agony. कष्ट से स्वतंत्र। God in His mercy and God in His grace did not allow Elijah or Enoch to rot in the ground. परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और दया में एलिया और हनोक को जमीन के अंदर सड़ने नहीं दिया। Elijah's tent came undone on his way up, एलिया का तंबू उसके ऊपर जाते हुए समाप्त हुआ, symbolized in the mantle that fell off him. उस चोगे के रूप में एक चिन्ह जो ऊपर जाते हुए उस पर से नीचे गिरा। What exactly happened to Elijah? एलिया के साथ असल में हुआ क्या? On the way up to heaven, ऊपर स्वर्ग जाते हुए the corruptible put on incorruptible. नाशवान ने अविनाशी को पहन लिया। On his way to heaven, उसके स्वर्ग जाते हुए the mortal put on immortality. नाश्वर ने अमरता को पहन लिया। On the way up to heaven, ऊपर स्वर्ग जाते हुए the perishable gave way to the imperishable. विनाशी ने अविनाशी के लिए रास्ता छोड़ दिया। Let's look back during this next to the last message in this series of messages how God works. आइए परमेश्वर कैसे कार्य करता है इस संदेश श्रृंखला के इस अंतिम से पहले संदेश पर फिर गौर करते हैं। We have seen God hide Elijah in Kerith Brook. हमने परमेश्वर के द्वारा एलिया को कीरत नाले में छिपाते देखा। We have seen God provide for Elijah in the heart of the land of Baal worship. हमने परमेश्वर को बाल उपासक लोगों के केंद्र में एलिया की जरूरतें पूरी करते देखा। We have seen God perform miracles in Zarephath. हमने परमेश्वर को सारपत में चमत्कार करते देखा। We have seen God perform miracles on Mount Carmel. हमने परमेश्वर को कार्मल पर्वत पर चमत्कार करते देखा। We have seen God minister to the tired, defeated and depressed Elijah in Beersheba. हमने परमेश्वर को बेरशबा में निराश, पराजित और थके हुए एलिया की मदद करते देखा। And we have seen God restore him in ministry to the next generation of Israel's kings. और हमने परमेश्वर के द्वारा एलिया को इस्राएल के राजाओं की अगली पीढ़ी में सेवकाई के लिए बहाल करते देखा। Today we see God take him to his very presence. आज हम परमेश्वर को उससे बिल्कुल अपनी उपस्थिति में ले जाते देख रहे Let हैं। me ask you again. मैं फिर आपसे पूछता हूँ, If you die tonight, यदि आज रात ही आपकी मृत्यु हो जाए, if you think that you're going to heaven, यदि आपको लगे कि आप स्वर्ग जाएंगे, on what basis should God let you into his heaven? तो परमेश्वर को किस आधार पर आपको अपने स्वर्ग में प्रवेश देना चाहिए? You may say, I'm good. शायद आप कहेंगे मैं अच्छा हूँ, I didn't kill anybody. मैंने किसी की हत्या नहीं की, I didn't steal. मैंने चोरी नहीं की। But the Bible says, परंतु बाइबल कहती है no one is good. कोई अच्छा नहीं है। We have all sinned and fallen short of the glory of God. हम सब ने पाप किया और परमेश्वर के प्रताप से रह गए हैं। No one of us good enough to make it to heaven. हम में से कोई भी इतना अच्छा नहीं कि वो स्वर्ग जा सके। You can be assured of heaven today by bowing to Jesus Christ. आप यीशु मसीह के सामने झुकने के द्वारा आज ही स्वर्ग का निश्चय पा सकते हैं। And that you would say to him, Lord Jesus, I am a sinner. और ये कि आप उससे कहें, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, I deserve your judgment. मैं आपके न्याय के ही लायक हूँ, I repent of my sin. मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ, Because you died to pay for the penalty of my sin. क्योंकि आप मेरे पापों का हर्जाना चुकाने के लिए मरे, Because you promised to forgive all those who come to you in repentance and faith. क्योंकि आपने उन सबको क्षमा करने का वादा किया है जो विश्वास और पश्चाताप के साथ आपके पास आते हैं। I'd come to you. मैं आपके पास आता हूँ, I accept your invitation. मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, Please forgive me. कृपया मुझे क्षमा करें, Make me a child of God. मुझे परमेश्वर का बच्चा बनाएं। Thank you, Lord Jesus. प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। Amen. आमीन। If you have prayed this prayer, we would love to hear from you. यदि आपने ये प्रार्थना की है तो हमें आपसे जानकर बहुत खुशी होगी। Would you write to us and tell us that you have prayed this prayer with me today?
क्या आप पत्र लिखकर हमें बताएंगे कि आज आपने मेरे साथ मिलकर ये प्रार्थना की? I look forward to hearing from you. मैं आपसे सुनने की प्रतीक्षा में हूँ। Till we meet next time, I wish you God's richest blessings. हमारे फिर मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।